Good afternoon, students. How are you all? I hope you all are fine at your home and you are doing your study very well at your home. Dear students, in previous lecture we have already studied about the discovery of electrons, protons and neutrons. And now we are going to start next topic, that is structure of an atom. In that unit we are going to start models of an atom. Models of an atom. Models of an atom. Before studying models of an atom, question was arised that how these subatomic particles, electron, protons and neutrons are arranged in an atom. तो उसी चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए साइंटिस्ट ने वेरियस मॉडल प्रपोज किए. तो उसमें जो फर्स्ट मॉडल है दैट इज जे थॉमसन मॉडल. फर्स्ट इज जे थॉमसन्स मॉडल. जे थॉमसन्स मॉडल of an atom. Model of an atom. According to J.J. Thomson's model, the atom is the sphere of positively charged particles called protons in which electrons are embedded in it. मैंने क्या बोला है कि according to short में लिखना, according to this model an atom is the sphere of positively charged particles called protons in which negatively charged electrons are embedded in it. यानी कि जे थॉमसन मॉडल के अनुसार एटम क्या एक पॉजिटिव चार्ज का प्रोटॉन्स का स्फीयर है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स धसे हुए एम्बेडेड हैं. और जो स्टेबिलिटी है इस मॉडल की, जो स्टेबिलिटी है वो किस बेस पर एक्सप्लेन की गई है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव चार्ज के हैं, उनके बीच में इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगी और इन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के साथ में इन इलेक्ट्रॉन्स की पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन्स के साथ अट्रैक्शन भी होगी. स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल इज एक्सप्लेन्ड on the basis of balance between the repulsive forces between electrons and the attractive forces between the electrons and protons. An atom is stabilized by balance of repulsive forces between electrons and attractive forces between electrons and positively charged center of sphere. And according to this model, atom is stabilized due to these forces and mass of an atom is uniformly distributed throughout. According to this model, it was considered that mass of an atom is uniformly distributed. This is the sphere of protons in which electrons are embedded
like this. This model was compared with watermelon and also called as watermelon model or cake pudding model, in which dry fruits are embedded. It was also called as watermelon model or cake or pudding model, in which seeds are embedded in red edible part of watermelon. जिस तरीके से वाटरमेलन में तरबूज के अंदर उसके बीज धसे होते हैं रेड एडिबल पार्ट में, उसी तरीके से जो है एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज का स्फीयर है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए हैं, और जैसे केक के अंदर ड्राई फ्रूट जो है एम्बेडेड होते हैं उसी तरीके से इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है पॉजिटिव चार्ज के स्फीयर में एम्बेडेड होते हैं. बट दिस मॉडल वाज फेल्ड बिकॉज ऑफ द रीजन दैट this model was not able to explain the scattering experiment performed by the Rutherford. लिमिटेशन में आ जाएगा इसकी लिमिटेशन. This model was rejected due to reason that it was not able to explain the scattering experiments performed by Rutherford. So dear students, Rutherford साइंटिस्ट है, उसने जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किए तो मॉडल को स्टडी करने के लिए, एटम की स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए, तो उसके जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है उनको ये मॉडल एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो जिस वजह से दिस मॉडल वाज रिजेक्टेड. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी Rutherford's model of an atom. Next is Rutherford's model of an atom. It is also called as nuclear model of an atom. और इस मॉडल के अकॉर्डिंग डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन भी की गई है. तो इसमें देखो क्या है, Rutherford performed some scattering experiments by bombardment of positively charged particles, helium-2 plus ions, that is alpha particles, on the thin foil of metals like gold, platinum, silver or copper etc. And he found that most of the alpha particles were passed straight and few particles, less number of particles were deflected by small angles, and very few particles, rare number of particles deflected by angle more than 90 डिग्री. देखो एक्सपेरिमेंट में क्या किया, ध्यान से देखेंगे, 2-3 बातें ध्यान से सुनना. एक तो ये जो गोल्ड फॉइल लिया गया, मैंने बोला है एक्सपेरिमेंट जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट किया गया इसमें हमने यहाँ पर थिन फॉइल ऑफ मेटल्स लिया है. यहाँ पर एक्सपेरिमेंट जो गोल्ड फॉइल को लेकर के किया गया है. अब रीजन ये है कि इसके बारे में भी क्वेश्चन होता है कि ये गोल्ड फॉइल ही क्यों लिया, बिकॉज रदरफोर्ड वांटेड टू टेक थिन फॉइल बट दैट मस्ट बी हैवियर. मतलब ऐसा फॉइल लेना चाहता है, ऐसी मेटल का फॉइल वहाँ पर लेना चाहता था कि जो हैवी भी हो और जो थिन, जितना मर्जी थिन पॉसिबल हो उतना थिन भी हो सके, ताकि रिजल्ट जो एक्सपेरिमेंट्स के और ज़्यादा एक्यूरेट आए. जैसे आप लोग जो है ग्लास बीड्स के साथ खेलते हैं, कांच की गोलियों के साथ खेलते हैं, तो उसमें हम देखते हैं अगर हम
किसी जो है मोटे या बड़े स्ट्राइकर के साथ छोटी गोली को हम स्ट्राइक करते हैं तो उस केस में क्या होता है, छोटी गोली अपने प्लेस से स्ट्राइक होने के बाद अपने प्लेस से दूर चली जाती है। और अगर हम अपोजिट करें, स्ट्राइकर यानी कि जो है मोटी जो गोली है उसको नीचे रखें और छोटी गोली से उसको ऊपर निशाना लगाएं, तो उस केस में क्या होगा, मोटी गोली तो अपनी जगह पर रहेगी बट छोटी गोली है वो डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो रीज़न यही था कि गोल्ड फॉइल इसलिए लिया क्योंकि वो एज थिन एज पॉसिबल और हैवियर जो है मेटल के फॉइल को यहाँ पर लेना चाहता है, इसलिए उसने गोल्ड को चूज किया। और जो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के लिए अल्फा पार्टिकल्स का यूज किया गया, ये क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। ये क्या है, बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। और अल्फा पार्टिकल्स का जो सोर्स था वो क्या था, दैट वाज रेडियो एक्टिव एलिमेंट रेडियम। इट वाज प्लेस्ड इन लेड ब्लॉक, लेड के ब्लॉक के अंदर इसको रखा गया था। रेडिएशन रिलीज हो रही है और उनको एक फाइन लाइन में जो है करने के लिए यहाँ पर स्लिट लगाई गई है। स्लिट होती है जो फाइन लाइन में एक पर्टिकुलर लाइन में उसको अरेंज करती है। तो देखो गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक किया तो मोस्टली जो है ज़्यादातर जो है 99.9% जो अल्फा पार्टिकल है वो गोल्ड फॉइल में से सीधे चले जाते हैं। और कुछ पार्टिकल्स है ये स्मॉल एंगल से डेविएट हो जाते हैं। और थर्ड जो है वो वेरी फ्यू पार्टिकल्स ग्रेटर देन 90 एंगल से डेविएट हो जाते हैं। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं ऑब्जर्वेशंस ऑफ रदरफोर्ड्स स्कैटरिंग मॉडल। रदरफोर्ड के स्कैटरिंग मॉडल की ऑब्जर्वेशंस। फर्स्ट पॉइंट, most of the alpha particles were passed straight through gold foil। ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल गोल्ड फॉइल के थ्रू स्ट्रेट पास हो गए। some particles got deflected by small angle third, very few or that is rare number of alpha particles were deflected back with an angle greater than 90 डिग्री। ये है ऑब्जर्वेशन। अब देखो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें जो ऑब्जर्वेशन आते हैं उनका कुछ ना कुछ रीजन होता है। तो रदरफोर्ड ने भी जब एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया तो ये पाया कि ये ऐसा क्यों है। Then he concluded that what are the conclusions of Rutherford's scattering experiment। रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के कंक्लूजन क्या थे, ध्यान से सुना इसको। फर्स्ट पॉइंट में हमने बोला है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। इसका कारण क्या था कि एन एटम जो है, एटम के अंदर इतना ज़्यादा एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल उस एम्प्टी स्पेस में से डायरेक्ट जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन पास होगी। तो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो कंक्लूजन था वो क्या था, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल वर पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल बिकॉज ए लार्ज एम्प्टी स्पेस इज प्रेजेंट इनसाइड एन एटम। सेकंड पॉइंट, सम जो है अल्फा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। उसका रीजन क्या था कि कुछ अल्फा पार्टिकल स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। इसका मतलब क्या है कि जब अल्फा पार्टिकल क्या पॉजिटिवली चार्ज के पार्टिकल हैं, तो जब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है सेंटर के आसपास से जब वो पास करके जा रहे थे तो वो डिफ्लेक्शन क्यों करते हैं, ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज का कोई स्पीसीज है रिपल्सन कर रहा है तो किससे करेगा, पॉजिटिव चार्ज से ही करेगा। इट मीन्स एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट है जिसके साथ उसने थोड़ा रिपल्सन किया और रिपल्सन की वजह से डिफ्लेक्शन कर गया। थर्ड पॉइंट आता है कि वेरी फ्यू पार्टिकल्स
वर डिफ्लेक्टेड बैक, बहुत कम पार्टिकल जो है वो डिफ्लेक्ट बैक हो गए हैं। इसका मतलब जो हमने सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो है बीच में कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज का पार्टिकल प्रेजेंट है जिसके साथ रिपल्सन से अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हो गए थे। थर्ड पॉइंट में है कि वो पॉजिटिव चार्ज जो पार्टिकल है, पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी है, दैट इज प्रेजेंट एट सेंटर, वो कहाँ पर प्रेजेंट है, वो एक तो हैवी है और सॉरी वो है पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जो है बीच में प्रेजेंट है, दैट इज प्रेजेंट एट सेंटर, या फिर वेरी स्मॉल स्पेस में, बहुत कम स्पेस में प्रेजेंट है। लास्ट पॉइंट आता है कि जब हमने बोला है कि पार्टिकल स्ट्राइक करके, कुछ अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक करके डिफ्लेक्ट बैक होके आ रहे हैं, इसका मतलब अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल सेंटर से बिल्कुल डायरेक्ट उस पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज से बीच में टकराता है तो टकरा करके वापिस आ रहे हैं। इसका मतलब है कि दैट पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ एटम इज हैवियर, यानी कि एटम के सेंटर में जो पॉजिटिव चार्ज का स्पीसीज प्रेजेंट है वो हैवियर है, जिसके साथ टकरा करके अल्फा पार्टिकल वापस मुड़ करके आए हैं। और वो हैवियर स्पीसीज जो है, जो सेंटर में प्रेजेंट है, वेरी स्मॉल स्पेस में, बहुत कम स्पेस में प्रेजेंट है। इन्हीं चीज को हम लिखेंगे। फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर पास्ड straight because a large amount of empty space is present inside an atom। इसका मतलब क्या है कि एटम के अंदर लार्ज जो है अमाउंट में, बड़ी मात्रा में एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है, और जिस एम्प्टी स्पेस के थ्रू ज्यादातर अल्फा पार्टिकल क्या कर गए, स्टेट पास कर गए। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग कंक्लूजन क्या है, सम अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, it means there is any positively charged species present at center due to repulsion from this species, alpha particles were deflected by small angles। Third point, very few particles got deflected back because that positively charged species is heavier। एंड फोर्थ पॉइंट, थर्ड ऑब्जर्वेशन के बेस पर ही, दैट पॉजिटिवली चार्ज्ड स्पीसीज प्रेजेंट एट सेंटर occupies a little space। ये पॉइंट जो बोला है, देखो वेरी फ्यू पार्टिकल, रेयर्स आउट ऑफ 20,000 में से कोई एक पार्टिकल जो है वो टकरा करके ग्रेटर देन 90 एंगल से डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब कि जो सेंटर में हैवियर स्पीसीज प्रेजेंट है पॉजिटिव चार्ज का, वो क्या है, बिल्कुल छोटे से स्पेस में प्रेजेंट है, तभी तो वेरी फ्यू पार्टिकल डिफ्लेक्ट बैक होते हैं ज्यादा एंगल से। अगर वो ज्यादा स्पेस में प्रेजेंट होता तो मोर नंबर ऑफ पार्टिकल जो है उसे टकरा करके वापस मुड़ के आते हैं।
तो यहाँ से हमने क्या पढ़ा, वी हैव स्टडीड अबाउट ऑब्जर्वेशंस ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल एंड देन वी स्टडीड अबाउट कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। तो इसके बेस पर हम क्या कह सकते हैं कि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो प्रेजेंट है हैवी एंड पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज जो प्रेजेंट है सेंटर में, वो जो है क्या है, न्यूक्लियस। अभी आपको मैं दिखा रहा हूं कि किस तरीके से गोल्ड फॉयल में, हमने यहाँ पे गोल्ड फॉयल तो दिखा दिया, बट किस तरीके से पार्टिकल्स का या बीम का अल्फा पार्टिकल्स का डिफ्लेक्शन हुआ वो मैं आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सपोज ये गोल्ड फॉयल है जो गोल्ड एटम से मिलकर बनी हुई है, इनके बीच में सेंटर पॉइंट है, यानी कि जिसको हम बोलेंगे कि पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है। देखो जब मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास स्ट्रेट, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल स्ट्रेट पास कर गए, क्योंकि जो ये एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट है उसमें से पास हो गए इस तरीके से। और हमने बोला कि फ्यू पार्टिकल पास गॉट डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल। जो पार्टिकल यहाँ सेंटर के पास से गुजरे वो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए इस तरीके से। और वेरी फ्यू पार्टिकल जो टकरा करके बिल्कुल सामने से टकरा करके वापस आए हैं वो डिफ्लेक्ट बैक हो गए। तो देखो लार्ज एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट था, इसीलिए ज्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे पास हो गए थे। और जो स्मॉल एंगल से डेविएट थे, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज के पास से गुजर रहे थे, तो पॉजिटिव चार्ज और रिपल्सन होने की वजह से वो क्या हो गए, यहाँ से स्मॉल एंगल से डेविएट हो गए। और जो वेरी फ्यू थे जो टकरा करके वापस मुड़ के गए, तो वो क्या थे, बिकॉज दैट पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज इज हैवियर एंड present in very little space inside an atom, that positively charged and heavier species present at center of an atom was called as nucleus। क्या बोला गया उसको, न्यूक्लियस बोला गया। सो डियर स्टूडेंट्स, ऑन द बेसिस ऑफ रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, रदरफोर्ड मॉडल क्या है, रदरफोर्ड्स मॉडल, जैसे बोल सकते हैं पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल, पॉइंट्स ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल अकॉर्डिंग टू स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, अकॉर्डिंग टू स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। तो स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड मॉडल के जो पॉइंट है, फॉर रदरफोर्ड्स मॉडल propose that an atom consists of two parts। एक एटम के अंदर दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर पार्ट एंड सेकंड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। सेकंड क्या है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। तो जो न्यूक्लियर पार्ट है, फर्स्ट जो न्यूक्लियस के अंदर का है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जो न्यूक्लियर के बाहर का है। डियर स्टूडेंट्स, रदरफोर्ड ने जो है स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर रदरफोर्ड मॉडल ने दो पॉइंट दिए कि जो एटम है इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। एटम के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज न्यूक्लियर पार्ट, दैट इज न्यूक्लियस। सेकंड पार्ट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट, न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एंड इज पॉजिटिवली चार्ज। न्यूक्लियस बहुत छोटा होता है और पॉजिटिव चार्ज का होता है। इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रॉन्स एज वेल एज प्रोटॉन्स। उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। और होल मास जो एटम का, लगभग सारा मास जो एटम का कहाँ पर कंसंट्रेटेड है, केंद्रित है, वो न्यूक्लियस के अंदर ही केंद्रित है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के मास को नेग्लिजिबल माना जाता है, ना के बराबर माना जाता है। उसके बाद जो पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के ऊपर वो भी किसकी वजह से माना जाता है, दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर तो कोई चार्ज नहीं होता। सेकेंड पार्ट इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, यानी कि जो लार्ज एम्प्टी स्पेस न्यूक्लियस के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, दैट वाज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। And later on Rutherford explained that electrons were distributed in an atom and electrons are not stationary। इलेक्ट्रॉन जो स्टेशनरी रुके हुए नहीं है, वो रिवॉल्व करते रहते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमते रहते हैं। जिस प्रकार से लाइक इन सोलर सिस्टम planets revolve around the sun, in the same way electrons also revolve around the nucleus in an atom. So dear students, we have studied very important topics today. So I hope it is completely clear to all of you, and I hope you all will practice this model and try to understand this model carefully. Thank you and have a nice day.